सभी को जय भीम जय श्रीराम दोस्तों। हम आज भारत का संविधान का आर्टिकल 14 को प्रैक्टिस करेंगे और 15 को भी पढ़ देंगे। तुम समझेंगे आर्टिकल क्या कह रहा है। भारत का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी हम भाग 3 के अंदर हैं। भाग 3 के अंदर 12 से लेकर 35 आर्टिकल है। तो हम 14 को प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी, इस भाग 3 को मौलिक अधिकार से संबोधित किया जाता है, फंडामेंटल राइट्स। तो अभी आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। इक्वलिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शॉल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। समान संरक्षण भी है, उसका राइट भी है, तो इक्वल ट्रीट करेगा। इसीलिए हम आर्टिकल 15 को भी एक बार पढ़ देंगे। वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का अबॉलिशन करता है। अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि इन्हीं के आधार पर ग्राउंड पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। प्रोहिबिशन है यानी कि निषेध है। तो क्लोज 1, द स्टेट शॉल नॉट discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. Close to, no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them be subject to any disability, liability, and restriction on condition with the regarding to subclause A, access to shop, public restaurant, hotel, and place of public entertainment. Subclause B, the use of well, tanks, bathing ghats, roads, and place of public restroom maintained wholly or partly out of state fund or dedicated up to the use of general public. Clause 3, nothing in this article shall prevent the state for making any special provision for women and children. Clause 4, nothing in this article or in clause 2 of article 29 shall prevent the state for making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribe. Clause 5, nothing in this article or subclause G of clause 1 of article 19 shall prevent of the state from making any special provision for law for the advancement of any socially and educationally backward classes of the citizens, for the scheduled caste or scheduled tribe in the so far as such special provision related to their admission to educational institution, including the private educational institution, whether aided or unaided by the state, other than the monetary educational institution referred to the clause 1 or article 30. ये कह रहा है clause 6, nothing in this article subclause G and clause 1 on article 19 or clause 2 of article 29 shall prevent the state to making
Sub clause A, any special provision for the adjustment of any economically weaker section of citizen other than the classes mentioned in clause 4 and clause 5. ये हमने कई बार कहा कि ये गलत आर्टिकल 15 के इंटेंशन को ही ये फुलफिल नहीं करता है, तो भी ये गलत अमेंडमेंट करके करंट क्लोज में इंक्लूड कर दिया है, मिला दिया है। तो अब जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गलत अमेंडमेंट कैसा आया है। तो देखिए, हम भारत के लोग हमारा अधिकार को ना जानते हुए तुम ऐसा सरकार को क्रिएट कर देते हैं कि वो गलत अमेंडमेंट ला रहे हैं, तो संविधान के आशय को खड़े उतर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर समझ में आता है। और क्लोज बी, सब क्लोज बी पढ़ेंगे। एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द advancement of any educationally weaker section of citizens other than the clause mentioned in clause 4 and clause 5 insofar such a special provision related to their admission to educational institution including private educational institution, whether aided or unaided by the state other than the monitoring educational institution refer to the clause 1 of article 30, which the case of reservation would be admission to the existing reservation and subject to the maximum of then 10% of the total seat of each category. Explanation for the purpose of this Article 16 economically weaker section shall be such as may be notified by the state for time to time on the basis of family income and other indicator to economically disadvantage है। ये बहुत गलत ऐड कर दिया है, तो पढ़ेंगे तो ये दिखता है। तो एक बार हिंदी में पढ़ देते हैं। धर्म, मूलों, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इसका प्रतिषेध होने के बाद भी जब खंड 5 खंड 6 को पढ़ेंगे तो एक अमेंडमेंट कब हुआ था इसका, ये देखिए 2019 संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 धारा 20 का 2019 में लेके आए। अभी के बाद जो सरकार है वो एक कंटिन्यू हो रहा है थर्ड टर्म में, तो वही सरकार ने ये काम किया है जो कि संविधान का मेल ही नहीं खाता। संविधान के इंटेंशन को, जो संविधान का आर्टिकल का इंटेंशन को उसका दायरे में नहीं आता है, तो ऐसे गलत अमेंडमेंट करके लाया गया है। क्योंकि इंसान के अंदर डिस्क्रिमिनेट करता है कि वीकर सेक्शन, अभी ये नहीं कह रहा है कि भारत के सभी को वीकर सेक्शन को 10% देंगे, वो सब क्लासिफिकेशन कर रहा है कि SC ST OBC को छोड़ के उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनको जो SC ST OBC में ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन का और इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर फुलफिल करने के लिए उनको आर्टिकल 15 में और 16 में भी प्रावधान है। तो यहाँ पर उनके अंदर भी एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है SC ST OBC में, तो उनको वहाँ पर जगह नहीं दे रहा है। तो ऐसा जो सरकार का इंटेंशन है संविधान का अमल करने में चूक रहा है, ये स्पष्ट नजर आता है। और एक पढ़ेंगे, राज्य किसी नागरिक को विरुद्ध केवल धर्म, मूलों, जाति या लिंग, जन्म स्थान या इन्हीं में से किन्हीं के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। क्लोज 2, कोई नागरिक केवल धर्म, मूलों, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इन्हीं में से किसी के आधार पर उपखंड क दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश या उपखंड ख पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोजन के लिए समर्पित कुएं, तालाबों, स्थान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक थोड़ा एक मिनट। हाँ दोस्तों,